ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਆਨਕ ਬਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। जुगो जुग अटल हाजरा हजूर जाहरा जहूर चबर तखत दे मालिक शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठे गुरु रूप साध संगत जी गुर फतेह प्रवान करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागी हो। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे पावन पवित्र शहीदी अस्थान ते जुड़ बैठ के पातशाह की बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सी। आओ मिथे गए समय अनुसार चल रही लड़ीवार गुर शब्द विचार नाल जुड़न का यतन करिए जी। हुणे भाई साहब जी ने शब्द पढ़िया, इस शब्द दे नाल जुड़न का आपां यतन करना है। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी की बाणी 52 अखरी दे एक सलोक ते एक पौड़ी का पाठ सत्कारयोग भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी हड ग्रंथी साहब जी ने किया। आओ उस शब्द नाल जुड़न का यतन करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक हाउ हाउ करत बेहानियाँ साकत मुगद अजान। रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत नानक किरत कमान। हाउ हाउ करत बेहानियाँ। हाउ का मतलब मैं। जदों हाउ दे नाल मैं जुड़ जाए तो वह हौमै बन जाती है। दो मैं हो जाने तो हौमै बन जाती। पातशाह इस सलोक राही समझा रहे ने कि जिहड़े लोग परमात्मा तो टुटे ने साकत, जिहड़े मूर्ख ने मुगद, जिहड़े अज्ञानी ने अजान, अजिहे लोकां दी जिंदगी हौमे दे विच बतीत हो जाती है। हाँ हाँ करत बेहानियाँ। मैं वड्डा हाँ, मैं सब कुछ हाँ। हौमे है ही इस चीज़ की कि जो कुछ हाँ सो मैं ही हाँ। जदों आप हौमे के अखरी अर्थ नूं पढ़ते हैं तो इहदा एक अर्थ ये भी निकलता है अपना आप जतावना, मैं पुणा। जो कुछ भी हाँ मैं ही हाँ। वैसे जदों आप गुरबाणी नूं पढ़ते हैं सानूं 5 विकारां दा जिक्र मिलता है। काम क्रोध लोभ मोह हंकार। हौमे हंकार एक ही चीज़ है। ते 5 विकारां विचों सब तो वड्डा विकार हौमे मन्निया गया। इत्थे एक गल होर आपां बाणी विचों समझदे हां कि यह हौमे का रोग मनुख नूं ही मिलिया। हौमै रोग मनुख को दीना। ते यह हौमै बचपन तो ही पैदा होंदियां ही आरंभ हो जाती है। जिमें जिमें बच्चा वड्डा हुंदा है उवें उवें मैं मेरी दी भावना वधी जाती है। कोई बच्चे कोल खिलौना है, कोई उहदा भैन भरा भी मंगना चाहे लैना चाहे वह नहीं दिंदा, कहंदा मेरा है। माँ की गोदी विच बैठा है, दूसरे भैन भरा नूं बैठण नहीं दिंदा कि मेरी माँ है।
ਇਹ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਉਮੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆਂ ਸਾਕਤ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਕਤ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਕਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਕਤ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਆਛਾ ਰੱਖੈ ਗਾਉ। ਸਾਕਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸੂਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ ਸਾਕਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਲੀ ਹੋਈ ਕੁੱਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਧ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਧ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਾਨ ਨੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਰੜਕ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਣ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ 52 ਅੱਖਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ। ਇੱਥੇ ਰੜਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵਵੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਰੜਕ ਮੁਏ, ਰੜਕ ਭਾਵ ਰੜਕ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਪੀੜ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੜਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਭ ਚੁੱਭ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਰੜਕ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੜਫਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਬ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੜਕ ਮੁਏ ਜਿਉ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭ ਚੁੱਭ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਹਉਮੈ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸਾਏ ਇਕੱਠਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਭਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬਿਹਾਨੀਆਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ।
जे मिल गई तो प्राप्त नहीं की, ਉਹਦੇ अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, परमात्मा के गुणों के नाल सांझ नहीं पाई। इसे करके पातशाह कहते ने उस व्यक्ति की हौमे के संस्कारां कारण आत्मक मौत हो जाती है, जिवें किसी प्यासे व्यक्ति की पानी तो बिना मौत हो जाए। अगे पौड़ी दे विच पातशाह सोजी बख्श रहे ने, पौड़ी राड़ा राड़ मिटाए संग साधु, करम धर्म तत् नाम आराधु। राड़ा अखर तो इस पौड़ी की आरंभता करते हुए पातशाह कह रहे हैं कि राड़ा राड़ मिटाए संग साधु। ये जिहड़ी राड़ है, जिहड़ी रड़क है, जिहड़ी हौमे की पीड़ है, हौमे के कंडे की पीड़ है, ये मिट सकती है। किवें मिट सकती है? संग साधु, गुरु की संगत विच बैठ कर, गुरु के संग दे नाल। हुण गुरु की संगत दे विच इन्नी महत्ता, इन्नी विशेषता आपां पातशाह की बाणी विच जदों संगत बारे पढ़दे हां ते पातशाह संगत की बड़ी विशेषता दसदे ने। पातशाह संग की गल करते हैं। संग का अर्थ है इकट्ठे होना। संग तो ही संगत बनया है। संगत तो सत संगत, साध संगत भाव चंगी संगत, गुरु की संगत, परमात्मा की संगत। संगत विच मिल बैठना साडी मर्यादा का हिस्सा है। गुरसिख संगत विच बैठते हैं, संगत विचों बड़ी प्राप्ति हुंदी है, बड़ी प्राप्ति होती है। आप पंचम पातशाह जी का सलोक ते पौड़ी की विचार नाल जुड़ रहे हैं। पंचम पातशाह का दीवान लग्या धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का। एक व्यक्ति आउंदा है, मत्था टेकदा है, संगत विच बैठ जाता है। उहदे पिछे पिछे 3-4 होर व्यक्ति आउंदे ने, वो भी मत्था टेकदे ने, बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद दीवान की समाप्ति होती है। वो जिहड़े 3-4 व्यक्ति बाद विच आए जिन्होंने मत्था टेकिया है, वो खड़े होंदे ने, हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, पातशाह असी इस इलाके दे सूहे हाँ। भाव जिन्हों आप अज सूहे लफज कह लीए भी पुलिस के बंदे ने, वो CID दे ने। असी इस इलाके दे सूहे हाँ। साडी सूह मुताबक, साडी खोज मुताबक एक चोर चोरी करके भजया है ते वो इधर आया है। हुण तुहाडी संगत विच इत्थे बड़े व्यक्ति बैठे ने, सानू उसकी पहचान नहीं है, तुसीं साडी मदद करो उस चोर नूं पकड़न दे लई। पातशाह कहंदे ने भी तुहाडे विचों अगर कोई इन्हां दा चोर है ते दस देवे कि मैं चोर हाँ। बड़ी हैरानगी की गल कि जिहड़ा व्यक्ति उन्हां तो अगे अगे आके मत्था टेक के बैठा है, वो खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ के कहता पातशाह मैं ही इन्हां दा चोर हाँ। हुण वो जिहड़े सूहे ने वो भी हैरान हुंदे ने। वो आखदे ने कि भाई जे तू हुणे अपने आप नूं पेश कर दिता है तो पहला क्यों भजिया सी? कहंदा जदों मैं तुहाडे कोलों भजिया सी, मैं सचमुच भजना चाहुंदा सी, मैं अपने आप नूं तुहाडे हवाले नहीं करना चाहुंदा सी। पर हुण मैं जदों इत्थे आके संगत विच बैठे हाँ, थोड़ा जिहा समा संगत विच बतीत कीता है ते मैनूं ये समझ आ गई है कि झूठ नहीं बोलना। मैनूं ये समझ आ गई है कि कोई माड़ा काम नहीं करना। इस करके मैं अपने आप नूं पेश कर रहा। देखो संगत की किड्डी महत्ता है कि एक व्यक्ति पहली बार संगत विच आ रहा है, थोड़ा जिहा समा गुरु की संगत विच बतीत कीता है तो उसनूं सोझी हो गई है कि जीवन किवें चलाउणा है।
उस नूं ये पता लग गया है कि कोई माड़ा कर्म नहीं करना, उस नूं पता लग गया। हुण वो अपने आप नूं उन्हां दे हवाले कर दिंदा, जिहड़े पुलिस वाले ने, जिहड़े सूईए ने। फिर उतों बाद जो अपनी सज़ा पूरी करके वापस गुरु के दर ते आ जाते ते हमेशा लिए अपना आप गुरु दे अर्पण कर देंदे ने। ते उन्हां दा नाम आपां इतिहास विच पढ़दे आ, उन्हां दा नाम है भाई बिधि चंद। भाई बिधि चंद जी बड़े करनी वाले सिख होए ने। 6वें पातशाह दे समय आपां एक साखी उन्हां दी पढ़दे आ कि जदों पातशाह वास्ते कोई गुरसिख घोड़े लैके आ रहा सी, वो घोड़े रस्ते विच खो लए ते वो दोनों घोड़े एक एक करके भाई बिधि चंद वापस लैके आए सन। वो भाई बिधि चंद जदों 6वें पातशाह ने फौज की कायमी की पहली बार, 6वें पातशाह जदों गुरता गद्दी ते विराजमान होए, पातशाह ने मीरी पीरी दियां तलवारां पहनियां ते गुरसिखां नूं हुक्म किया कि हुण घोड़े भेजो, नौजवान भेजो, शस्त्र भेजो। तो उस वक्त फौज बनाई, तो फौज के जोड़े पहले 5 जरनैल थापे गए, उन्हां विचों एक भाई बिधि चंद जी भी सन। अज तक भाई बिधि चंद जी की संप्रदा चलती है दल पंथ के नाम से। सत्कारयोग बाबा अवतार सिंह जी, बाबा दया सिंह जी सुर सिंह वालियां दे सपुत्र इस वक्त उस संप्रदा के मुखी ने। अज तक वो संप्रदा चलती गुरु साहब की कृपा दे नाल। ओ भाई बिधि चंद जिहड़े किसी वेले चोर सन, गुरु की संगत विच आके ऐसी उन्हां दे उपर कृपा हुई कि गुरु साहब ने उन्हां नूं एक वर भी दिता। आपां सारे सुनिया उहदे बारे, बिधि चंद छीना गुरु का सीना। गुरु साहब ने अपना सीना कह के उन्हां दा मान वधाया, उन्हां नूं अपने सीने दे नाल लाया। ते ये सारी कृपा संगत दी है। संगत विच आके भैड़े कर्म नाश हो जाते ने। जे किते आपां संगत विच आके कुछ प्राप्ति करिए, बड़ियां प्राप्तियां ने। संगत विचों बहुत कुछ प्राप्तियां होंदियां ने। बस गल यही है कि असी संगत विच आइए, बैठिए। बड़े बड़े भागां दी गल है संगत विच आउणा। पातशाह कहते ने वड भागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटां खावै। जिहड़े वड्डियां भागां वाले ने वो संगत विच बैठदे ने, ते जिहड़े भागहीन ने जिन्हां दे भागां विच नहीं है, वो फिर भरम दे विच भटकदे ने ते विकारां दीयां चोटां खांदे ने, भरम दे विच भटकदे ने। संगत दा असर केवल मनुख ही नहीं कबूलदा, संगत दा असर पंछी भी कबूलते हैं, जानवर भी कबूलते हैं। आप हुणे गल कर रहे हैं, भगत कबीर जी कहते हैं बैसनों की कुकर पली। वो जानवर जिहड़े नाल रहिंदे ने मनुख दे, वो भी संगत दा असर कबूलते हैं। एक व्यक्ति किसी घर दे विच वड़िया, कमरे विच वड़िया, तो एक आवाज़ आई जी आयां नूं। वो वेखदा कोई मनुख तो इत्थे बैठा ही नहीं। आवाज़ आई है, झात मारदा, उत्ते पिंजरे दे विच एक तोता बैठा है, जिहड़ा अंदर आए मेहमान का स्वागत कर रहा है। क्योंकि वो संगत का असर है कि जदों कोई अंदर आवे तो उन्होंने जी आया नूं कहना है, वो तोता बोल रहे हैं। जे संगत का असर जानवरां ते पंछियां ते हो सकता है, तो मनुख तो बनिया ही संगत लई है। मनुखा जन्म इको एक ऐसा जन्म है जिस जन्म दे विच आके जीव अपने जन्म दे मनोरथ नूं सफल कर सकता है। केवल मनुखा जन्म, बाकी होर किसी जन्म दे विच ये प्राप्ति नहीं हुंदी। मनुख नाम नहीं जप सकता, कोई भी होर जीव नाम नहीं जप सकता। केवल मनुख जून विच नाम जपिया जा सकता, कोई होर जून विच नहीं जपिया जा सकता। किसी होर जून विच संगत की प्राप्ति नहीं है। इत्थे संगत की प्राप्ति है, तो संगत विच नाम मिलता है। सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है।
जिथे केवल नाम की गल है, जिथे नाम की प्राप्ति है। तो जदों पातशाह जीवन के मनोरथ की गल समझाते हैं कि मनुख ने अपने जीवन के मनोरथ को किवें सफल करना है, आप रोज शाम को रहरास साहब की बाणी में पढ़ते हैं, भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, कि ये जिहड़ा तैनूं मनुखा शरीर मिलिया, जिहड़ी मनुखा देह मिली है, ये परमात्मा दे नाल मिलन की वारी है। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। बड़े सारे जन्मां तो बाद ये वाला जन्म मिले, कई जन्म पए कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल ए दे सजरिया। बड़े जन्मां विचों लंघ के आया मनुख, पशुआं दे, पंछियां दे, पौधियां दे, बड़े जन्मां विचों लंघ के आया। पातशाह कहंदे ये जन्म हुण मिलिया है परमात्मा नूं मिलण दे लई, जगदीश नूं मिलण दे लई, जगत दा ईश्वर, जगत दा मालक, उस नूं मिलण दे लई। पातशाह ये सानूं मनोरथ दसदे ने साडे मनुखा जन्म दा। ते जदों मनोरथ दसदे ने भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, ते अगे इस दा रस्ता भी दस रहे ने, अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। होर जिन्ने भी तू कर्म धर्म दे समझ के कर रहे हैं, तेरे किसे काम आने वाले नहीं। केवल संगत विच बैठ के, सत संगत विच बैठ के परमात्मा दे नाम नाल सांझ पा लै, परमात्मा दे नाम दे नाल सांझ पा लै। यही गल पातशाह इस शब्द विच भी सानू समझाते ने। पातशाह कहते ने राड़ा राड़ मिटाए संग साधु। संगत दे विच बैठ के गुरु दे संग दे नाल, शब्द दे संग दे नाल तेरी ए हौमे वाली राड़ जड़ी है ये खत्म हो जाएगी, ये मिट जाएगी। करम धर्म तत् नाम अराधु, जिन्ने भी धार्मिक मन्ने जान वाले कर्म ने, जिन्ने भी कर्म असी धर्म दे समझ के करते हैं, उन्हां विचों बहुते कर्म ऐसे होंदे जिहड़े धर्म दे हुंदे नहीं, पर असी धर्म दे समझ के कर लैने आ। ते पातशाह कहंदे ने सारे जिन्ने भी कर्म धर्म ने जिहड़े धर्म दे काम समझ के कीते जांदे ने, उन्हां सारियां दा निचोड़ की है? नाम आराधु, नाम दी आराधना, नाम दे नाल जुड़ना। कर्म धर्म तत्, तत् दा मतलब है निचोड़, असलियत। तत् की है? परमात्मा दे नाम दी आराधना करनी। जिवें आपां हुणे गल कीती है, अवर काज तेरे कितै ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम दी गल, नाम दे नाल सांझ पानी है। इत्थे भी पातशाह कह रहे ने कि सारे कर्मां तो उच्चा कर्म है परमात्मा दे नाम नूं जपना, परमात्मा दे नाम नूं जपना। बड़े लंबे समय तो जदों तो धर्म की होंद है, धर्म की दुनिया दे विच, धर्म की दुनिया तो बाहर दे विच एक ये सवाल बड़ा अज भी प्रचलित है, लंबे समय तो प्रचलित है कि सब तो चंगा धर्म केड़ा है, सब तो चंगा धर्म केड़ा है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी नूं भी यह सवाल पूछा गया जदों आप बगदाद की धरती ते गए, तो उत्थे भी पातशाह नूं पूछया। भाई गुरदास जी के वारां विच आपां पढ़दे हां, कहंदे ने पुछन फूल किताब नो हिंदू वड्डा कि मुसलमान होई, कि वड्डा हिंदू है कि मुसलमान है, भाव हिंदू चंगा या मुसलमान चंगा है। अज भी ये सवाल उस तरह पूछा जाता है, अज भी इस सवाल का जिक्र किया जाता है। तो गुरु नानक साहब का जवाब बड़ा सुंदर से। पातशाह कहते ने जदों कहते ना हिंदू वड्डा के मुसलमान होई, पातशाह कहते ने शुभ अमला बाझों दोनों रोई। जिदे कर्म चंगे नहीं ने, जिदे अमल शुभ नहीं ने, वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे अज का सिख अखवाउण वाला है। जिदे कर्म चंगे नहीं ने वो चंगा नहीं है, वो नहीं चंगा। गल धर्म दी नहीं है,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧਰਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ, ਕਿ ਤਤ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾੜਾ ਰਾੜ ਮਿਟੈ ਸੰਗ ਸਾਧੂ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਤਤ ਨਾਮ ਅਰਾਧੂ। ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਖਤਮ, ਚੁਭਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾਤ ਦੀ ਉਹ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਤ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਤ ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਉਸ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਯਾਦ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂੜੋ ਜੇ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਰੂੜੋ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂੜੋ ਜੇ ਬਸਿਓ ਰਿਦ ਮਾਹੀ, ਉਆ ਕੀ ਡਾੜ ਮਿਟਤ ਬਿਨ ਸਾਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਰਾੜ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਰੜਕ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੀ ਪੀੜ ਉਹ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਆਈ ਹੈ।
संगत विच बैठ के नाम की प्राप्ति हो गई है। हुण वो हौमे वाली गल्लां खत्म हो गई ने, बिनस गई ने, हौमे नहीं है। हुण प्राप्ति है जिस दे हिरदे विच परमात्मा वस जाए। आपां हुणे धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के सलोकां का जिक्र कर रहे सी। सब तो पहले सलोक च पातशाह कहंदे ने, जिसने नाम नहीं जपिया जीवन व्यर्थ गवा लिया। तो जदों सब तो आखिरी सलोक ते पहुंचते हैं, पातशाह कहंदे ने, राम नाम और मैं गहियो जाके सम नहीं कोई। जिसने अपने हृदय विच परमात्मा दे नाम नूं टिका लिया, गहियो इत्थे हाहे नाल है, गयो नहीं, गहियो ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। जिसने परमात्मा दे नाम नूं अपने हृदय विच पका लिया, टिका लिया, रूड़ो जे बसियो रिद माही, वो परमात्मा जिस दे हृदय विच वस गया, ਉਹਦੇ अंदर वो नाम का वासा हो गया है। आप बाणी में पढ़ते हैं पंचम पातशाह के फरमान। पातशाह कहते ने, कोई गावै को सुनै, कोई करे विचार, को उपदेश है, को दृढ़ है, तिसका होए उदार। कोई गा रहा है, भाई साहब हुणे कीर्तन कर रहे सन, नाल आपां भी गा रहे सी, सुन आपां सारे ही रहे हैं। कोई गावै को सुनै, कोई करे विचार, कोई इस तो एक कदम अगे वध के विचार दे नाल सांझ पांदा। आपां सारे विचार नाल जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े भागां दी गल है। को उपदेश है, कोई मेरे वर्गा इत्थे स्टेज ते आके उपदेश करी जा रहा है। को दृढ़ है, पर जिसने हृदय विच दृढ़ कर लिया है, तिसका होए उदार। उदार उसे दा होना। गा रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पर उधार उसे दा होना है जिसने दृढ़ कर लिया। ते दृढ़ किस कौन कर सकता है? रूड़ो जे बसियो रिद माही, जिस दे हृदय विच परमात्मा दा वासा हो गया, वो दृढ़ कर लेगा। उतों उतों पढ़ने वाला दृढ़ नहीं कर सकता, शरीरक तौर पर हाजरी लगाने वाला दृढ़ नहीं कर सकता। जिन्हें मन नूं भी जोड़ लिया है, जिहदे मन की भी हाजरी लग गई है, जिन्हें मन नूं नाम दे नाल जोड़ लिया। पातशाह कहते हैं, फिर उआ की डाड़ मिड़त बिनसाही, उस दी ए हौमे वाली रड़क, ए हौमे वाली पीड़, ए मिट जाती है, ए नास हो जाती है। हड़ाड़ करत साकत गावारा। हुण ये जिहड़ी हौमे दे कंडे दी पीड़ है, ये उही मनुख करते ने जिहड़े साकत ने, जिहड़े परमात्मा तो टुटे हुए ने, दूसरे नहीं करते। जिहड़े परमात्मा तो टुटे ने, जिन्हों नाम की सोझी नहीं पाई अजे तक, वो नाम नाल नहीं जुड़े, वो उतों उतों भावें अपने आप नूं ये दसदे ने अपनी हौमे के कारण कि मैं बहुत कुछ कर रहा, पर वो अजे साकत नहीं। ते ये हौमे वाली पीड़ उन्हां दे हृदय विच चलदी पई है। राड़ करत साकत गावारा, साकत भाव रब तो टुटे, गावार इत्थे फिर मूर्ख की गल कर रहे हैं पातशाह। मूर्ख, मुगध, गवार, ये एक ही गल है। ये गवार ने जिहड़े मूर्ख ने, जिहड़े जिन्होंने समझ नहीं है, जिहड़े बेसमझ नहीं, उन्हां दे अंदर वो राड़ जिहड़ी है वो चलती रहिंदी, हौमे वाली राड़ चलती रहिंदी, हौमे की पीड़ उन्हां दे अंदर चलती रहिंदी है। आपां पढ़दे हैं रोज रात नूं सोहला साहब की बाणी विच, साकत हर रस साध ना जाने तने अंतर हौमै कंडा है। जिहड़े साकत ने उन्होंने परमात्मा दे नाम रस नूं नहीं जाने, उन्होंने नाम रस का नहीं पता। वो जिन्नी देर तक नाम रस का नहीं पता, मनुख दुनिया के रसां विच ही खचत है। रोज पढ़ते हैं धन गुरु अमरदास महाराज जी का फरमान, ए रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, रसना पाव जीव। पातशाह कह रहे हैं गुरु अमरदास महाराज, तू बड़े सारे पदार्थों के स्वाद विच रचत है, तेरी रुचि है उहदे विच, पर फिर भी तेरी प्यास खत्म नहीं होती। तेरी इच्छा होर रहिंदी कि होर पदार्थ मिल जान, खाण नूं होर मिल जान। प्यास ना जाए होर तो किता है, जिचर
हर रस पल्ले ना पाए। जदों तक परमात्मा के नाम का रस नहीं मिलिया उदों तक दूसरे स्वादां दे विच मस्त रहिंदा जी। साकत हर रस साध ना जाने आ। जदों तक परमात्मा के नाम का रस नहीं है उदों तक मनुख परमात्मा नाल साझ नहीं पा सकता। दुनियावी रसां दे विच खचत आ, दुनियावी स्वादां विच खचत आ। तां ही पातशाह कह रहे हैं राड़ करत साकत गावारा। जिहड़े मनुख साकत ने, परमात्मा तो टुटे ने, हौमे करके माया करके वो बड़ी दूर ने, गवार ने, उन्होंने समझ नहीं है, ते उन्हां दे हिरदे विच ही ये पीड़ पई रहिंदी है। जे हिया अहबुंद बिकारा, उन्हां दे हिरदे विच अहंकार, ये वाला विकार कि मैं वड्डा बन जा, विकार ही पए ने उन्हां दे हिरदे विच। उन्हां दे हिरदे विच विकार भरे पए ने। उन्हां दा जीवन विकारां दे प्रभाव नाल चलदा है। ते जिन्हां ने गुरु की किरपा नाल विकारां नूं काबू कर लिया है, वो विकारां नूं अपने प्रभाव नाल चलाउंदे ने। विकार कदे खत्म नहीं हो सकते। उन्हां नूं अपने काबू विच कीता जा सकदा, अपने प्रभाव विच कीता जा सकदा। ते जदों तक उन्हां नूं अपने प्रभाव विच नहीं कीता, मनुख उन्हां दे प्रभाव विच चलदा। कोई बड़ी सारी प्राप्ति हो गई तो हौमे आ गई कि देखो जी मैं कितना कुछ कर लिया। तो जे प्राप्ति ना हुई तो क्रोध आ गया। यह भी एक विकार है भी ये मैनू प्राप्ति हुई क्यों नहीं। फिर वो क्रोध उन्हां ते निकलना है जिन्होंने कारण समझना भी मेरे इन्हां करके मेरा ये काम नहीं होया। इच्छावां बड़ियां पैदा हो जांदियां, कामनावां पैदा हो जांदियां ने। पातशाह कहंदे ने जिन्हां दे हिरदे विच विकार ने, वो साकत ने, वो गवार ने, ते उन्हां दी हौमे वाली पीड़ दा नाश नहीं हो सकता। आखिरी पंक्तियां विच पातशाह कहंदे ने राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई। हुण जिहड़े इस तो उलट ने, जिन्हां ने गुरु दी शरण विच पै के, गुरु दी संगत विच सांझ बना के, गुरु दे नाल अपना मुख जोड़ के अपनी इस राड़ नूं मिटा लिया, इस हौमे दी पीड़ नूं खत्म कर लिया, वो गुरमुख नहीं। आपां जदों गल करदे आ गुरमुख जिन्हां दा मुख गुरु वल है, जिहड़े गुरु दे अनुसार अपने जीवन नूं जीव रहे ने, उन्हां नूं आपां सन्मुख भी पढ़दे आ। बाणी दे विच सन्मुख भी कह दिता जाता है, भाव गुरु दे सन्मुख नहीं। ते जिहड़े गुरु कोल आए नहीं, अपना जीवन अपने मन के हिसाब नाल चलाउंदे ने, उन्हां नूं मनमुख कहदे ने। ते एक श्रेणी होर है जिन्हां नूं बाणी विच पातशाह बेमुख कह दिंदे ने। उन्हां नूं पता है, वो मनमुखा वांगू ये नहीं कि बिल्कुल उन्हां नूं पता ही कुछ नहीं। उन्हां नूं पता है भी गुरु का हुक्म की है, पर वो बेमुख हो जाते हैं, मोड़ लेंदे ने, मुंह मोड़ लेंदे ने, अपना वो मुंह मोड़ लेंदे ने। ते जिहड़े गुरमुख ने, जिहड़े सन्मुख ने, बड़ा सारा अंतर पातशाह ने मुनमुख गुरमुख बेमुख का सानू समझाया है। इत्थे पातशाह गुरमुख की गल कर रहे हैं। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, राड़ा अखर की गल हो रही है। 52 अखरी बाणी दे विच इस पौड़ी इस श्लोक की गल राड़े अखर नाल संबंधित है। पातशाह कहंदे ने वो मनुख जिन्हां ने गुरु दे नाल सांझ पाई है। जे को गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई जियों रहे गुर नाले, वो गुरु दे नाल अपना जी जोड़ के रहिंदे ने, वो सन्मुख ने, वो गुरमुख ने। ते अगली पौड़ी च पातशाह कहंदे ने जे को गुर ते बेमुख होवे। हुण देखो कितना अंतर है। जिथे पातशाह सन्मुख कह रहे हैं उत्थे सिख लफज लिख रहे हैं। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे, भाव वो सिख कुहाण दा हकदार है, ये गुरु साहब कह रहे हैं। ते जे कोई बेमुख हो गया उहदे नाल पातशाह सिख लफज भी नहीं लिख रहे, भाव वो सिख कुहाण दा हकदार भी नहीं है। इत्थे पातशाह इस आखिरी पंक्ति दे विच सानू अजिही सोझी बख्श रहे ने कि गुरमुख बन के उस हौमे दी पीड़ दा नाश किया जा सकता, उसनूं मिटाया जा सकता।
गुरमुख बन के, गुरु नाल जुड़ के, गुरु नाल जुड़ के, जिन्हां ने गुरु नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सफल कर लिया, अपने जीवन नूं गुरु दे अनुसार चला लिया, वो गुरमुख नहीं। तां ही तां बाणी च आपां पढ़दे हां कि जिहड़े गुरमुख ने फिर उस मनुखा जन्म का लाभ लै जांदे ने। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो, वो अपना मूल भी गवा जाते हैं। लाभ करना तो बड़ी वड्डी गल हो गई, उन्होंने तो मूल भी खत्म हो गया, जिहड़े अपने मन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। इत्थे पातशाह कहते हैं इस हौमे की पीड़ को खत्म करना है तो गुरु के नाल सांझ पानी पएगी, अपने जीवन को गुरु के अनुसार चलाना पएगा। राड़ा गुरमुख राड़ मिटाई, निमख माहे नानक समझाई। ते जिन्हां ने ये किज कीता, जिहड़े गुरमुख बन गए, उन्हां दी राड़ मिट गई। ते एक निमख जिन्ने समय दे विच, भाव बहुत थोड़े समय दे विच गुरु पातशाह ने कृपा कर दी। गुरु पातशाह ने कृपा करके ये समझा दिता, इस अख दे फौर दे समय दे विच ही आत्मक आनंद की झलक मिल गई, आत्मक आनंद पैदा हो गया। आपां आरंभता विच पढ़िया कि जिहड़ा जीवन है, हौमे वाला जीवन है, वो इस तरह बतीत हो जाता है, आत्मक मौत बन जाती है। जिहड़ा जीव हौमे विच अपने जीवन को बतीत कर रहा है, मान लो कि वह आत्मक तौर पर मरिया होया है। ते अंत विच पातशाह कह रहे ने, जिसने अपनी हौमे की राड़ नूं खत्म कर लिया, वो गुरमुख बन गए, गुरु दे नाल जुड़ गए, गुरु दे नाल उन्हां दी सांझ बण आई, ते फिर उन्हां नूं आत्मक आनंद दे झलकारे दिखा दिते पातशाह ने। वो आत्मक आनंद दे विच अपने आप नूं वेखिया पाउंदे नहीं। आपां रोज़ शाम नूं रहरास साहब की बाणी विच भी पढ़दे हां, आखां जीवां विसरै मर जाऊं। जे मैं जीवन जीव रहा आत्मक तौर पर, भाव जदों मैं परमात्मा का नाम लै रहा, आख रहा, याद कर रहा, वो सिमरन विच हाँ, वो याद विच हाँ, तो यह आत्मक जीवन है। तो जे मैं उसनूं विसर गया, क्यों विसर गया? क्योंकि मैं हौमे की पीड़ करके सब कुछ हौं हो दे विच ही अपना जीवन बतीत करी जा रहा। मैं हौं विच ही लग्या होया, मैनूं होर कुछ भी समझ नहीं आ रही, मैं अपने जीवन को उत्थे लाया होया है, तो फिर ये आत्मक मौत है, मैं विसर गया। अज इस शब्द दे विच आपां यही गल समझण दा यतन कीता है कि जिहड़ी हौमे की पीड़ है, इस करके जीवन व्यर्थ बतीत हो जाता है। तो ये उन्हां दे हिरदे विच ही है, जिन्हां दे हिरदे विच विकार ने, ते गुरु की कृपा हो जाए, गुरु का नाम हिरदे विच वस जाए, तो ये पीड़ खत्म हो जाती है। जदों गुरु नाल जुड़ के गुरमुख बन जाइए, तो गुरु साहब अख दे फौर जितने समय विच भी आत्मक आनंद के झलकारे दिखा देंदे ने। अज आपां इस शब्द के विचार नाल जुड़न का यतन कीता। आप जी वड्डियां भागां वाले हो, रोजाना इस तरह संगत विच जुड़ बैठ के गुरु की बाणी दे नाल अपनी सांझ नूं वधाउंदे हो। गुरु साहब कृपा करन। अज यही अरदास बेनती जोदड़ी आपां गुरु साहब दे अगे करके जानी है कि सच्चे पातशाह साडे ते भी कृपा करो, साडी भी इस हौमे वाली पीड़ का नाश करो, साडी भी ये हौमे वाली पीड़ खत्म हो जाए, तो साडी भी गुरु दे नाल सांझ बनाए। सच जाने हो, जिस दिन गुरु साहब ने साडी इस अरदास नूं, इस बेनती नूं, इस जोदड़ी नूं कबूल कर लिया, हो जाणगे साडे सारियां दे ये लोक सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले वाली दात सानू सारियां नूं प्राप्त हो जाएगी जी। इतने शब्द प्रवान करना। कोटान कोट शुक्र सतगुरु सच्चे पातशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी, धर्म प्रचार कमेटी, सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी हरनाम सिंह जी, ज्ञानी अंग्रेज सिंह जी ਅਤੇ बाकी सारे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप संगत का कोटान कोट शुक्र जो आप जी ने बैठ के गुरु के नाम के विचार के नाल सांझ पाउण दा यतन किया जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।